بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ تم کیسے بتا سکتے ہو کہ وہ مسلمان ہے؟ میں نے کہا، فوجی افسر ہندو ہو یا مسلمان، وردی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ یہ اسے میں نے بتایا تھا۔ ابرے نے کہا، ایک بار میں نے مہندر کی بیوی کو اس فوجی افسر کے ساتھ کناٹ پیلس میں دیکھا تھا۔ میں ان کے پیچھے تھا۔ آپ جانتے ہیں کناٹ پیلس میں ذرا رش ہوتا ہے۔ اس روز یہ جوان فوجی وردی میں تھا۔ آگے سے اسی جیسے دو فوجی افسر آ رہے تھے۔ مہندر کی بیوی والا افسر انہیں دیکھ کر رک گیا۔ مہندر کی بیوی آگے نکل گئی۔ اس افسر نے ان دونوں افسروں کو بڑی زور سے السلام علیکم کہا اور ہاتھ ملایا۔ میں آگے نکل گیا۔ یہ مہندر کی شادی سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اسے بہت ہی اچھی طرح دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان دونوں کو پھر دیکھا۔ وہ ایک ٹیکسی کے قریب کھڑے تھے۔ میں انہیں نئے بیاہے ہوئے میاں بیوی سمجھ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ کتنا خوبصورت جوڑا ہے۔ 10-12 دنوں بعد مہندر کی شادی ہوئی تو وہ اپنی دلہن کو یہاں لایا اور اسے گھمایا پھرایا۔ یہ کام دکھایا جو چل رہا ہے۔ ملک صاحب، میں نے لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے اس فوجی افسر کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ بعض انسانوں کی شکلیں آپس میں اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر جب ہم نے شادی کے بعد اس لڑکی کو آزادی سے باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ شادی کے بعد دارے نے دوبارہ مجھے بتایا کہ اس نے مہندر کی بیوی کو ایک بڑے خوبصورت اور جوان فوجی افسر کے ساتھ دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ دارا کہنے لگا کہ سیٹھ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ رہنے دو یار، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ الٹا ہم پر الزام دھر دیں گے کہ ہم ان کی لڑکی کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں بتا سکتا ہوں، دارے نے کہا۔ میں مسلمان نہیں، سکھ ہوں۔ چونکہ میں نے داڑھی نہیں رکھی اور کیس سر کے بال بھی نہیں، اس لیے یہ لوگ مجھے ہندو سمجھتے ہیں۔ میرا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کے دو نوکر میرے یار ہیں۔ کچھ تو میں نے خود دیکھا ہے اور زیادہ باتیں نوکروں نے بتائی ہیں۔ مہندر اپنی بیوی کا غلام بنا ہوا تھا۔ بیوی اس پر اپنا حکم چلاتی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، وہ مہندر کو ماں باپ سے الگ کر کے لے گئی۔ اتنی ہوشیار لڑکی ہے کہ اس نے مہندر کے ماں باپ اور اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ تعلق اتنا پیارا رکھا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن سے کہا کہ مقتول کی بیوی اسے اس فلیٹ میں صرف اس مقصد کے لیے لے آئی تھی کہ اس فوجی افسر سے ملنے میں سہولت رہے۔ مقتول تو صبح گیا ہوا شام کے بعد واپس آتا تھا۔ اس کے سوا اس کا اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹینیسن نے کہا، اس فلیٹ میں رہنے والے ان کے پڑوسیوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نکرانی بھی ہے، اس سے ڈرا دھمکا کر پوچھیں گے۔ اب اس لڑکی نے غائب ہونا ہے، میں نے کہا، اور اس آرمی آفیسر کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ ہم نے یہ بات انگریزی میں کی تھی تاکہ ابرا اور دارا نہ سمجھ سکیں۔ ان دونوں نے ہمیں راستے پر ڈال دیا تھا۔ ان سے میں نے چند اور ضروری باتیں پوچھی۔ مہندر بھی کوئی آدمی تھا ملک صاحب، ابرا بولا۔ خدا نے اتنی خوبصورت بیوی دی تھی اور یہ سیٹھ صاحب اس کمرے میں مزدور لڑکیوں کے ساتھ جھک مار رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو CIA میں انفارمر مخبر بن جائیں، میں انہیں بہت معاوضہ دلاؤں گا۔ سیٹھ کا کام بھی جاری رکھیں۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ انسپکٹر ٹینیسن نے انہیں کہا کہ اس کیس میں انہوں نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا انہیں انعام ملے گا اور 2-3 دنوں میں مل جائے گا۔ اب ہمیں مزید وہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مینیجر کو بھی میں نے اندر بلا لیا اور ان تینوں سے کہا کہ جوگندر پال یہاں آئے تو اسے یہ بتا دیں کہ ہم یہاں آئے تھے اور گھوم پھر کر اور یہ کمرہ دیکھ کر چلے گئے تھے۔ یہ نہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں۔ ہم واپس آ گئے۔ اب ہمارے ذہن سے بوجھ کم ہو گیا تھا۔ ہم نے 3 افراد کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلانے کا پروگرام بنا لیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم مقتول کی بیوی کی نوکرانی تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ ہم جب وہاں گئے تھے تو چائے کی ٹرے وہی لائی اور ہمارے آگے رکھی تھی۔ میں نے اسے پولیس کی نظروں سے دیکھا تھا۔
इसकी उम्र कमोबेश 40 साल थी। इसका रंग गंदमी और नक्श तीखे थे। इसकी आंखों में कोई ख़ास बात थी। साफ महसूस होता था कि ये आंखें अपने अंदर कोई ऐसा तासुर या असर रखती हैं कि कोई आम सा आदमी इन आंखों का सामना नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि ये औरत आम घरेलू नौकरानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और ये काबिल तारीफ़ किरदार की औरत नहीं थी। मैंने बाहर आकर इंस्पेक्टर टेनिसन से कहा था कि ये नौकरानी शायद किसी वक्त हमारे काम आए। इसकी आंखों में कुछ राज हैं। बाकी जिन 2 अफराद को बुलाना था वो मकतूल की बीवी के पड़ोसी थे, एक दाएं तरफ के घर वाला और एक बाएं तरफ रहने वाला। तीनों को एक ही बार नहीं बुलाएंगे, इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा। पहले नौकरानी को बुलाएंगे। अगर उसने राज उगल दिया तो पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने उसी दिन के पिछले पहर अपनी ब्रांच के एक ASI को तहरीरी सुमन देकर भेज दिया कि इस नौकरानी को साथ ले आए। पुर इसरार नौकरानी, बेवा की राजदार। जहाँ तक मुझे याद है यह नौकरानी 4 बजे से कुछ पहले आ गई। ASI ने बताया कि मकतूल की बेवा को बताया कि इसकी नौकरानी को अपने साथ तफ्तीश के लिए ले जाना है, तो यकलख्त उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और आंखें सफ़ेद हो गईं। आप इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो गई हैं? ASI ने कहा। इससे कुछ बातें पूछनी हैं, फिर मैं इसे खुद यहाँ छोड़ जाऊँगा। आपको ज़रा सा भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें इसकी परेशानी का कोई ख्याल नहीं था। ये तो डिप्लोमेसी थी कि ASI उसे तसल्लियाँ दे रहा था। पुलिस जिस किसी को भी शामिल तफ्तीश करती है उसके घर वाले परेशान होते हैं, मिन्नतें करते हैं, रिश्वत भी पेश करते हैं कि इनके आदमी को थाने न बुलाया जाए। नौकरानी आई। इंस्पेक्टर टेनिसन ने मुझे कहा कि मैं अकेला इससे पूछगछ करूं, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर की मौजूदगी में यह औरत घबराएगी। ये अल्लाह का करम था कि मेरी साख ऐसी बन गई थी कि अंग्रेज़ अफसर मुझ पर भरोसा करते और मेरी राय और मेरे फैसलों को मानते थे। मैं नौकरानी को तफ्तीश के कमरे में ले गया और कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपना नाम रानी बताया और मेरे इस सवाल के जवाब में कि वो कब से इन लोगों के यहाँ मुलाजमा है, बड़ी अहम बात बताई कि वो मकतूल के घर की नौकरानी नहीं बल्कि वो कमल मकतूल की बेवा के मेके घर में उस वक्त से नौकरी कर रही है जब कमल 14-15 साल की थी। कमल की शादी हुई तो कमल अपने खामद के साथ फ्लैट में आ गई। यहाँ आते ही इसने अपने मैके घर से इस नौकरानी को बुला लिया। क्यों? मैंने पूछा। तुम्हारे साथ कमल को बहुत प्यार था? ये छोटी सी थी जब मैं इस घर में आई थी, उसने जवाब दिया। ये मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगती थी, इससे दिल में मेरा प्यार पैदा हो गया। देखो रानी, मैंने कहा, डरना और घबराना नहीं और यहाँ अपने आप को नौकरानी ना समझना। हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमने झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलोगी या कोई बात छुपा लोगी तो ये बात हमें दूसरों से मालूम हो जाएगी। हम कल तुम्हारे मालकों के घर गए थे। कमल के भाई ने हमें बहुत सी बातें बताई हैं। कुछ बातें तुम्हारे पड़ोसियों से मालूम हुई हैं। अगर तुम कोई बात छुपा कर रखोगी तो फिर तुम्हें यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। पुलिस के आगे झूठ बोलना जुर्म है जिसकी सज़ा मिलती है। तुम नौकरानी हो, गरीब औरत हो, इन अमीर लोगों के मामलों में ना पड़ना। मैं तुम्हारे मालकों को पता नहीं चलने दूंगा कि तुमने हमें क्या बताया है। इस तरह मैंने उसे बड़े प्यारे अंदाज में डराया और चंद और ऐसी बातें की जिनसे उसे फूंक मिली और उसके चेहरे का खिंचाव कम हो गया। मैंने अपने शक के मुताबिक हवा में तीर चलाया। हमें यह मालूम हो चुका है कि तुम्हारी मालका कमल की दोस्ती एक मुसलमान के साथ है। मैंने कहा, वो फौजी अफसर है और कभी कभी वो फ्लैट में भी कमल के पास आया करता है। अब अगर तुम अपनी मालकन पर पर्दा डालने के लिए कहोगी कि नहीं ये गलत है तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। हम जानते हैं ये बात सच है, फिर ये होगा कि हम तुम्हें झूठ बोलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इतने बड़े अफसर के आगे झूठ क्यों बोलूँगी महाराज? उसने मरऊब आवाज़ में कहा। एक अर्ज़ करूँगी, मैं बच्चों वाली हूँ। खामद को बड़ा बुखार टाइफाइड हुआ था, इससे उसका दायां बाजू अकड़ गया था। वो घर में बच्चों की देखभाल के सिवा कोई और काम नहीं कर सकता। कमल देवी की मेहरबानी है कि मैं माजूर खामद और 3 बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अगर कमल को पता चल जाए कि मैंने उसका भेद खोल दिया है तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? ना आपका हुक्म टाल सकती हूँ ना अपनी मालकन का। इसका हुक्म है कि इसकी कोई बात किसी को नहीं बतानी। नौकरों और मज़ारों की ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि वो अपने आकाओं को नाराज़ करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते।
लेकिन ये बदकिस्मत लोग जब पुलिस के हाथों में आ जाते हैं तो उन पर नज़ा जैसी हालत तारी हो जाती है। इन्हें मौत नज़र आती है मगर भाग नहीं सकते। तफ्तीश करने वाले अफसर को एक इंसान की हैसियत से इनके साथ हमदर्दी होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ऐसी होती है जिसे वो इंसानी हमदर्दी पर कुर्बान नहीं कर सकता। मैं ऐसे नौकरों चाकरों को तसल्लियाँ देनी जानता था। मेरी कोशिश ये भी होती थी कि इन नौकरों और मज़ारों को पर्दे में ही रखूं, क्योंकि इनके आका इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे जो इंतहाई जालमाना होती थीं। ये कार्रवाइयाँ आज भी होती हैं। राज फाश करने वाले मज़ारे की जवान बेटी अगवा हो जाएगी, गांव में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को भूख की मार दी जाएगी। ये नौकरानी जो मेरे सामने बैठी थी कोई सादा तबीयत की बुद्धू औरत नहीं थी। इसका चेहरा, आंखें और उसका अंदाज बता रहा था कि जहनी तौर पर जिंदा व बेदार और हाजिर दिमाग है, और अगर उसे अपने असर में ले लिया जाए तो समझो कारून का खजाना हाथ आ गया। मैंने उसे अपने मखसूस पुर असर अंदाज से यकीन दिलाया कि इसकी मालकिन को पता नहीं चलेगा। आपको ठीक बताया गया है, उसने कहा। मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। मैं तो कमल की नौकरानी हूँ, लेकिन उसकी राजदार हूँ। यही वजह है कि उसने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। ये जब कॉलेज पढ़ती थी तो भी मैं इसकी राजदार थी। मैं आपको ये बता दूं कि राज सिर्फ इतना सा है कि इसकी दोस्ती एक मुसलमान फौजी अफसर के साथ है जो शादी से पहले की है। ये भी बता देती हूँ कि इनकी दोस्ती नाजायज़ ताल्लुकात वाली है। मैं ये नहीं बता सकती कि शादी से पहले भी इनके ताल्लुकात जिस्मानी थे या नहीं। ये यकीन से कहती हूँ कि शादी के बाद इनके ताल्लुकात मियाँ बीवी वाले हो गए थे। मैंने इससे कुछ बातें पूछी जो उसने साफ साफ बता दी। उसने एक अजीब बात सुनाई। शादी के बाद कमल अपने खामद को उसके घर वालों से अलग करके ले आई थी। ये फ्लैट कमल के भाई ने उसे किराए पर ले दिया था। कमल ने फ्लैट में आते ही इस नौकरानी को अपने वालिदैन के घर से बुलाकर अपने पास रख लिया था। कमल का खामद सुबह घर से निकलता और रात को वापस आता था। फ्लैट में आने के एक हफ्ते बाद मकतूल को कारोबार के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा। वो दोपहर की रेलगाड़ी से गया। कमल नौकरानी को बताकर कहीं चली गई। 1.5-2 घंटे बाद वापस आई और नौकरानी को बताया कि आज शाम का खाना वो होटल में ज़फ़र के साथ खाएगी और ज़फ़र रात यहीं रहेगा। ज़फ़र उसके आशना फौजी अफसर का नाम था। कमल ने नौकरानी से कहा कि वो बेडरूम को बहुत अच्छी तरह साफ़ करे और शाम को कनाट पैलेस से गुलाब और मोतिये के फूलों के 6 हार लाकर बेडरूम में रख दे। सूरज गुरूब होने के कोई 1 घंटा बाद कमल ने ख़ास तौर पर बनाव सिंगार किया और वो कपड़े पहने जिनमें वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। तुम खाना खा लेना रानी, उसने नौकरानी से कहा। उधर से यानी ससुराल से कोई आ जाए तो कहना कि कमल की 2 पुरानी क्लास फेलो आ गई थी और वो उसे ज़बरदस्ती पिक्चर देखने के लिए ले गई हैं। उन्हें चलता करना। वापसी पर ज़फ़र मेरे साथ होगा। अगर घर में कोई हुआ तो तुम बाहर बरामदे में रहना। कमल ने उसे अपनी वापसी का अंदाज़न वक्त बताया। एक और शब्बे उरूसी। कमल 1.5-2 घंटों बाद वापस आ गई। ज़फ़र उसके साथ था। दोनों बेडरूम में चले गए और सहर के वक्त बाहर निकले। ज़फ़र नाश्ता किए बगैर चला गया। कमल उरूसी लिबास में थी। उसने नौकरानी को 25 रुपये इनाम दिया। उसे आज का 500 रुपया कह लें। नौकरानी ने बताया कि अगली रात ज़फ़र फिर आया और रात 12 बजे के बाद गया था। फिर महेंद्र पाल मकतूल खामद आ गया। उसके बाद ज़फ़र दिन के वक्त हफ्ते में 1 बार आता और जल्द ही चला जाता था। वो नौकरानी को हर बार 10 रुपये दे जाता था। कमल बड़ी होशियार लड़की है, नौकरानी ने बताया। उसने अपने ससुराल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक को इतना खुश रखा हुआ था कि वो तो उस पर जान छिड़कते थे। हंसने और हंसाने वाली लड़की है। तीसरे चौथे दिन ससुराल वालों के घर चली जाती थी। खामद के साथ किस तरह रहती थी, मैंने पूछा। खिंची खिंची रहती होगी। नहीं महाराज, नौकरानी ने जवाब दिया। घर की नौकरानी तो मैं हूँ। महेंद्र जी की जो खिदमत मुझे करनी चाहिए थी वो कमल करती थी। वो शाम को आते थे तो कमल उनके जूतों के तस्मे खोलने बैठ जाती थी। महेंद्र जी उसे हर रोज़ मना करते थे, लेकिन कमल ज़बरदस्ती उसके तस्मे खोलती थी। वो रात को जितनी भी देर से आते, कमल उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ होकर उनके कपड़े तब्दील कराती थी। वो सुबह तैयार होकर निकलते तो कमल उनसे बगलगीर होकर उन्हें रुखसत करती थी। लेकिन रानी, मैंने कहा, मैंने सुना है कमल का खामन तो मिट्टी का माधु था। महाराज जी, रानी ने जवाब दिया, मिट्टी का माधु अगर किसी ने बनाया था तो अच्छा ही बनाया होगा, लेकिन महेंद्र जी का क्या बताऊं। जिस तरह उसके जिस्म में गुब्बारे की तरह हवा भरी हुई थी, उसी तरह उसके दिमाग में भी हवा ही भरी हुई थी।
एक शाम वो ज़रा जल्दी घर आ गया। कमल को इतला मिली थी कि उसकी माँ को तेज़ बुखार है। वो मुझे ये बताकर चली गई कि शाम को आ जाएगी। उसके आने से पहले महिंदर आ गया। मैंने उसे बताया कि कमल कुछ देर तक आ जाएगी। महिंदर ने मुझे ही कमल समझ लिया और अपने बाजुओं में मुझे लेकर गोद में बिठा लिया। फिर मुझे 5 रुपए दिए। मेरा तो ख्याल है कि कमल इससे नफरत करती होगी, मैंने कहा। यह गोल गप्पा नफरत के काबिल ही था, नौकरानी ने कहा, लेकिन इसके साथ कमल का जो सलूक और रवैया था वो आपको बताया है। इसके जवाब में महिंदर जी का ये हाल था कि कमल की पूजा करते थे। मेरा ख्याल है कि तन्हाई में कमल के पाँव को चाटते होंगे। कमल के मुंह से बात निकली और महिंदर जी ने पूरी की। वो तो कमल का गुलाम था। शादी के कुछ ही दिनों बाद कमल ने कहा कि वो अलहदा रहना चाहती है, तो महिंदर जी ने उसे एक बार भी ना कहा कि माँ बाप से अलग हो जाना ठीक नहीं होता। उन्होंने अगले ही रोज़ किराए की रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया और उस फ्लैट में आ गए। इस तरह कुछ और वाक़यात और बातें सुनाकर रानी ने बड़ी अच्छी तरह वाज़े कर दिया कि कमल अपने खामंद के साथ गुलामाना हरकत करके उसे उल्लू बनाती रहती थी और खामंद सही मायनों में उसका गुलाम बनकर इसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। ये तो नौकरानी रानी ने साबित कर ही दिया था कि कमल अपने खामंद के साथ बेवफाई कर रही थी। अब एक और ज़रूरी बात बताओ रानी, मैंने पूछा। महिंदर रात को कत्ल हुआ था? उस दिन कमल कहीं बाहर गई थी? नहीं, उसने जवाब दिया। उससे एक रोज़ पहले जफ़र आया था और 1 घंटा कमल के साथ गुजार गया था। दूसरे दिन महिंदर जी सुबह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गए तो कमल ने मुझे बताया कि वो उनके साथ जा रही है और आज दिन वो ससुराल में गुजारेगी और रात हम देर से वापस आएंगे। महिंदर जी उसे अपने घर छोड़ गए। मुझे दूसरे दिन खबर मिली थी कि महिंदर जी को किसी दुश्मन ने गोली मार दी है। मैंने घर को ताला लगाया और वहाँ चली गई। कमल किस हालत में थी? मैंने पूछा। दिखावे के आंसू बहाती होगी। नहीं महाराज, उसने जवाब दिया। उसका रोना दिखावे का नहीं था। एक दिन में वो 2 बार बेहोश हुई। उसके दांत बड़ी मुश्किल से उखाड़े गए थे। दांतों के दरमियान 2 छोटे चम्मच फंसा दिए गए थे। उसे होश आती थी तो अपने बाल नोचती और अपने मुंह पर जोर जोर से 2 हथड़ मारती थी। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया था। डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन दिया गया तो उसकी हालत ज़रा सी संभल गई। उसने तफसील से सुनाया कि कमल की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर 1 दिन और 1 रात उनके घर में रहा। मैंने सोचा कि ये नौकरानी अगर मुबालगा नहीं कर रही तो ये एक्टिंग नहीं थी। एक्टिंग की एक हद होती है। वो अभी तक संभली नहीं, रानी ने कहा। पहले वाली हालत नहीं, उसने तो रो रो कर बेहोश होना ही है महाराज। उसका ये खामंद अच्छा था, बुरा था, चाहे बहुत ही बुरा था। कमल को अब सारी उम्र दूसरा खामंद नहीं मिल सकता। उसकी ज़िंदगी इस तरह अंधेरा हो गई है कि वो धुतकारी गई है। औरतें उससे दूर हट गई हैं। उसने तमाम जेवर उतार फेंका है और अब निहायत मामूली किस्म के कपड़े पहनती है। इसे तो अपने घर से भी प्यार नहीं मिल सकता। ये खुशकिस्मत है कि इसके भाई सुधीर जी के दिल में इसका इतना ज़्यादा प्यार है कि उन्होंने इसे कहा कि इसी फ्लैट में रहो और वो किराया देता रहेगा। जफ़र आया होगा, मैंने कहा। कमल महिंदर जी के मरने के तीसरे रोज़ फ्लैट में आ गई थी। रानी ने बताया उसके 2-3 दिन बाद जफ़र आया था। उसे मालूम था कि सुधीर जी सुबह अपने कारोबार पर चले जाते हैं और शाम को आते हैं। उसके बाद जफ़र दोबारा आया था। उनकी आपस की बातें तुमने नहीं सुनी? नहीं महाराज, रानी ने जवाब दिया। वो दोनों बेडरूम में बैठते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। मेरी ड्यूटी ये होती है कि पहरा दूं, कोई आ जाए तो उन्हें इतला दूं। फ्लैट के पीछे लोहे की गोल सीढ़ी है। जफ़र इधर से आसानी से भाग सकता है, लेकिन अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आ गया हो। आना भी किसने है? कमल की बड़ी गहरी सहेलियां भी नहीं आती। अब एक ऐसी बात पूछूंगा जो तुम नहीं बताओगी, मैंने कहा। जहां तुमने कोई राज छुपा नहीं रहने दिया वहां ये राज भी दे दो। तुम अक्ल वाली औरत हो। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि कमल ने अपने खामद को जफ़र के हाथों मरवाया होगा और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो जफ़र के साथ गायब होकर मुसलमान हो जाएगी और उसके साथ शादी कर लेगी? तुम कमल की राजदार हो। मेरा ख्याल है उसने तुम्हें ये राज भी दे दिया होगा। नहीं महाराज, उसने जवाब दिया। कमल ने मुझे ऐसा कोई राज नहीं दिया। मैंने खुद बहुत सोचा है कि कमल को किसने बेवा किया है। घूम फिर कर ख्याल यहीं पर आकर रुक जाता है कि कमल ने कत्ल करवाया है और जफ़र ने कत्ल किया है। फिर मैंने ये भी सोचा कि कमल ने अगर जफ़र के साथ ही शादी करनी थी तो शादी से पहले उसके साथ भाग जाती। शादी करके खामद को
कत्ल कराने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन महाराज जी, कभी ये शक भी होता है कि ज़फ़र कातिल नहीं और कमल अपने खामद को कत्ल नहीं करवाना चाहती थी। मुझे उसका रोना, बेहोश हो जाना, अपने बाल और चेहरा नोचना याद आता है तो मैं कहती हूँ कि कमल अपने खामद को ज़िंदा रखना चाहती थी। एक और बात है महाराज, बच्ची मैं भी नहीं, दुनिया को आंखें खोल कर देखा है, लेकिन आप ज़्यादा अक्ल वाले और तजर्बे वाले हैं। आप खुद गौर करें, महेंद्र जी के मरने के बाद कमल ज़फ़र के पास आता रहा और वो बेडरूम में बैठे रहते थे। हर बार 2 घंटे तो ज़रूर बैठते थे, फिर कमल दरवाजे तक उसके साथ जाती थी। 3-4 दिन पहले, यानी जिस दिन आप हमारे घर आए उससे 2 दिन पहले ज़फ़र दिन के वक्त आया और पहले की तरह कमल के साथ बेडरूम में चला गया। कमल की जहनी हालत बेहतर हो गई थी। मैं ड्राइंग रूम में कालीन पर सफाई वाली मशीन फेर रही थी। कमल और ज़फ़र को बेडरूम में गए अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि इस कमरे से कमल की बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं। वो गुस्से में बोल रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला तो कमल गुस्से की हालत में कह रही थी, निकल जा यहाँ से, मैं फिर कभी तुम्हारी सूरत ना देखूं। ज़फ़र कह रहा था, ज़रा होश में आओ कमल, लेकिन कमल उसकी सुन ही नहीं रही थी। उसने कहा, अगर तू यहाँ से ना निकला तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तुझे किसने कहा था कि मुझे बेवा कर दे। उसने ज़फ़र को धक्के देकर घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके इतनी रोई कि इसकी हिचकी बन गई। बेडरूम में पलंग पर औंधे मुंह लेटी और बच्चों की तरह रोती चली गई। मैंने उसे बहलाने की कोशिश की, वो और ज़्यादा रोने लगी। वजह पूछी, लेकिन उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। उसकी हालत बिगड़ती ही गई। शाम को उसके भाई सुधीर जी आए तो उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने इंजेक्शन तो नहीं दिया, दवाइयाँ दी थीं। अब कमल ये दवाइयाँ लेती है और ज़्यादा वक्त सोई रहती है। कल भी डॉक्टर आया था, कमल के साथ बंद कमरे में बहुत देर बैठा रहा था। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि कमल की हालत बेहतर हो गई थी। रानी ने हमारा काम कर दिया था। इंस्पेक्टर टेनिसन दूसरे कमरे में बैठा था। मैंने उसे जाकर तफसील से सुनाया कि इस नौकरानी ने क्या बयान दिया है और मैंने इससे और क्या कुछ उगलवा लिया है। टेनिसन इतना खुश हुआ कि उसने जेब से 10 रुपये निकाले और कहा कि इसे दे दो, हम महकमे से वसूल कर लेंगे। मैंने रानी के पास आकर उसे 10 रुपये दिए और अच्छी तरह समझा दिया कि वो कमल और उसके भाई को ना बताए कि उसने हमें क्या क्या बताया है, बल्कि ये कहे कि 2 घंटे तो इंतज़ार में बाहर बिठाए रखा, फिर अंदर बुलाकर सिर्फ 10 मिनट घर की 2 बातें पूछी और 10 रुपये खर्चा देकर वापस भेज दिया। खामद और आशना के दरमियान पिसने लगी। उसके जाने के बाद मैंने टेनिसन के साथ सलाह मशवरा किया। अब कमल के पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं रही थी। अब इस डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो गया था जो कमल का इलाज कर रहा था। रानी ने बताया था कि खामद के कत्ल पर कमल की जहनी हालत बहुत बुरी हुई थी, फिर संभल गई थी। फिर ज़फ़र के साथ उसकी कोई गड़बड़ हुई तो उसकी जहनी हालत फिर इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। हम जब कमल के घर गए थे तो मैंने उसके भाई से इस डॉक्टर का एड्रेस ले लिया था। मैं और टेनिसन उसी रोज़ उसके क्लिनिक में जा पहुँचे और अपना तारुफ कराया। वो तकरीबन 50 वर्ष उम्र का आदमी था, दिमागी अमराज का डॉक्टर था, एक सरकारी अस्पताल में मुलाजमत भी करता था। वो हिंदू था। उस वक्त के डॉक्टरों के मुतालिक कुछ बताना ज़रूरी समझता हूँ। आज के डॉक्टर इलाज मुआवजा नहीं, कारोबार करते हैं। उस वक्त के डॉक्टर सही मायनों में मसीहा थे। इनके दिलों में इंसानों की हमदर्दी थी और अपने पेशे के तकद्दुस का ख्याल रखते थे। आजकल दिमागी अमराज के डॉक्टर मरीज़ से सिर्फ इतना सुनते हैं कि उसे कोई जहनी तकलीफ़ है, ये नहीं पूछते कि इस तकलीफ़ का बायस क्या है। ज़रा सी भी तहकीकात नहीं करते और जहनी सुकून की गोलियां ट्रांकोलाइज़र दे देते हैं। हमारे वक्तों के जहनी अमराज के डॉक्टरों का अंदाज कुछ और होता था। पुलिस की तरह बीमारी की बड़ी मेहनत से तफ्तीश करते थे। जहनी सुकून की गोलियां तो वो किसी ऐसे जहनी मरीज़ को देते थे जो बेकाबू हो जाता था। असल बात यह है कि उस दौर में जहनी मरीज़ बहुत ही कम होते थे। डिप्रेशन के नाम से भी कोई वाकिफ़ नहीं था। आजकल तो हर तीसरा आदमी डिप्रेशन का मरीज़ है। औरतों में ये मर्ज ज़्यादा है, डॉक्टरों की चांदी है। हम उस हिंदू डॉक्टर के पास गए और मकतूल की बेवा का हवाला दिया। ये तो उसे मालूम था कि कमल का खामद कत्ल हो गया है। पहले दिन कमल बेहोश हुई तो उसी डॉक्टर ने वहाँ जाकर उसे इंजेक्शन दिया था। उसने हमें बताया कि कमल पर सदमे का असर था। इतना तो हम भी समझते हैं कि यह सदमे का असर है। इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा, हम कातिल की तलाश में हैं। हमें शक है कि आपकी मरीज़ा को मालूम है कि कातिल कौन है। हमने देखा कि डॉक्टर के होंठों पर तबस्सुम आया और वो सोच में पड़ गया।
कल परसों कमल के साथ आपकी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, मैंने कहा। उसके बाद वो खासी बेहतर हो गई थी। मैंने उसे हिंदू समझते हुए कहा, हमें यह भी शक है कि कातिल मुसलमान है। इस कातिल को ज़्यादा देर आज़ाद नहीं रहना चाहिए। मुझे मालूम था कि मुसलमान का लफ्ज़ सुनकर ही यह हिंदू बिच्छू की तरह डंक खड़ा कर लेगा। मरीज़ा के ज़मीर पर जुर्म का बोझ है, डॉक्टर ने कहा। मैंने खुद उससे पूछा था, खामद की मौत का सदमा तो है ही, हिंदू औरत के लिए यह सदमा दोहरा होता है। वो इस तरह कि उससे सारी उम्र बेवा रहना होता है। लेकिन इस मरीज़ा को मैंने कुरीदा तो पता चला कि ये कोई ऐसा काम कर बैठी है जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या आपने महसूस नहीं किया कि इसने अपने खामद को कत्ल करवाया है? इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा। अगर आप तजर्बाकार साइकेट्रिस्ट हैं, मुझे आपसे सिर्फ ये तवक्को है कि आप हमारे साथ तामुन करेंगे। मैं तामुन से इनकार नहीं कर रहा, उसने कहा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको किस तरह समझाऊं कि मरीज़ा की जहनी कैफियत क्या है। ये इंसानी फितरत का अजीब सा मुजाहरा है जो बहुत कम देखने में आता है, या यूं कहना चाहिए कि बहुत कम लोग अपनी इस किस्म की जहनी हालत का इजहार करते हैं। उसने डॉक्टरी ज़बान में बड़ी लंबी बात की। मैं ये सारा तज्जिया या तशखीस पेश नहीं कर सकता। उसने कहा कि ये मरीज़ा अपने खामद की मौत और अपने आशना के दरमियान इस तरह पिस रही है जैसे चक्की के दो पत्थरों में दाना आ जाता है। वो दोनों को ज़िंदा देखना चाहती थी, लेकिन उसके आशना ने उसके खामद को दरमियान से उठा दिया। इससे इसकी ज़हनी हालत पागलपन तक जा पहुंची। क्या उसने बताया है कि इसका आशना कौन है? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैंने पूछा भी नहीं। यह भी ख्याल रखें कि कोई इंसान इस तरह इकबाल जुर्म नहीं किया करता। ये इस दवाई का असर था जो मैंने इसे दी थी। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैंने कहा। यह दवाई इसे फिर दें। मेरा ख्याल है इस दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर ने कहा। आप इसके पास चले जाएं, उसने मुझे कहा। आप अकेले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रिटिश ऑफिसर के साथ शायद बेतकल्लुफ़ ना हो। अगर आपके साथ बात ना करे तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूंगा। डॉक्टर के साथ बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई थी जिससे रानी के बयान की तस्दीक हो गई। मेरे लिए ये बड़ा अजीब केस था। अजीब लड़की, दो खामद। मैं अगले रोज़ सुबह 10 बजे के करीब कमल के घर चला गया। उसका भाई घर नहीं था। रानी मुझे अंदर ले गई और ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने पहली बार कमल को देखा। हर लिहाज से खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर उदासी का गहरा तासुर था और उसकी चाल मरीजों जैसी थी। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मैं उठ खड़ा हुआ। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उसने कहा। आप यहाँ आए थे? भाई ने मुझे जगाया नहीं। मैंने ही आपके भाई को रोक दिया था, मैंने कहा। एक तो आप इतने बड़े सदमे में हैं, दूसरे मैं आपको परेशान करना शुरू कर दूं। ये तो रस्मी बातें थीं। मैं बच बच कर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की बातों की तरफ आने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं इसके डॉक्टर से मिल आया हूँ और डॉक्टर ने मुझे ख़ास तौर पर इसके पास भेजा है। वो खामोशी से सुनती रही। मैंने पुलिस सर्विस में बाज़ ऐसे पेशेवर मुजरमों से इकबाली बयान सिर्फ ज़बान का जादू चलाकर ले लिए थे जिनके मुतालिक मशहूर था कि इनकी हड्डियां तोड़ दो तो भी नहीं बोलते। मैंने उनके जिस्मों को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन इस लड़की से राज की बात उगलवाना मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा था। मैं वो सारी बातें नहीं लिख सकता जो मैंने उसके साथ की थी। बहुत लंबी गुफ्तगू थी। ये जहन में रखें कि मेरे अंदाज में हमदर्दी थी, अपनायत और बेतकल्फ़ी थी। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ा ही सख्त इम्तिहान था। उसकी जहनी हालत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने जब उसकी इस कमज़ोरी को भांप लिया तो मैंने प्यार प्यार में सीधी बातें शुरू कर दी। मसलन मैंने एक बात यह कही, इसमें ज़रा सा भी शुबा नहीं रहा कि आप कातिल को जानती हैं। कातिल को जानना और पुलिस से छुपाए रखना जुर्म है। आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे मशवरा देने वाला कोई नहीं, उसने कहा। मेरा दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है कि मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। मुझे बताओ कमल, मैंने कहा। भूल जाओ कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे अपना हमदर्द हिंदुस्तानी समझो। अपने आप को ना जलाओ, बता दो। एक बात याद रखो कमल, ये मशहूर होता चला जा रहा है कि कमल ने अपने खामद को खुद मरवाया है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुसलमान है और वो आर्मी ऑफिसर है। उसने चौंक कर मेरे मुंह पर नज़रें गाड़ दी। ये भी मशहूर हो गया है, मैंने कहा, कि तुम उससे शादी कर लोगी, इसीलिए तुमने अपने खामद को उसके हाथों मरवाया है। मैं नहीं, वो मेरे साथ शादी करना चाहता है, उसने कहा। मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। उसका नाम ज़फ़र है ना? मैंने कहा। हाँ, उसने जवाब दिया, ज़फ़र। वो कैप्टन है। मैं उसे गिरफ्तार कराना चाहती हूँ। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं उसके सिवा और कोई राय नहीं दे सकता था।
کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ان دوائیوں کے اثرات تھے جو ڈاکٹر اسے دے رہا تھا۔ شعوری طور پر وہ بیدار نہیں تھی، اس کا ذہن لاشعور بیدار تھا۔ گناہ اور گناہوں کے اعتراف ذہن لاشعور میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کوئی نشہ جب شعور کو سلا دیتا ہے تو انسان کا ذہن لاشعور اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ جب ہوش میں آتا ہے، یعنی جب اس کا شعوری ذہن بیدار ہوتا ہے، تو اسے بالکل یاد نہیں رہتا کہ وہ نشے میں کیا باتیں کرتا رہا ہے۔ کمل نے اپنی اور ظفر کی محبت کا قصہ شروع کر دیا۔ اس وقت وہ کالج میں 3rd ایئر میں پڑھتی تھی، ظفر 4th ایئر میں تھا۔ کالج ایک ہی تھا، وہیں ان کی محبت شروع ہوئی تھی، اور یہ محبت پاک نہیں تھی۔ ظفر نے BA پاس کیا تو اسے فوج میں کمیشن مل گئی۔ یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جنگ عظیم میں انگریزوں کو روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے وار فنڈ کا اجرا کیا تھا۔ ہندوستان کے جاگیرداروں، ہندو سیٹھوں اور بڑے ٹھیکیداروں نے اتنا زیادہ چندہ دیا تھا کہ انگریز حیران رہ گئے تھے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ کسی سیٹھ وغیرہ نے اس درخواست کے ساتھ 30-40 ہزار روپیہ چندہ دیا کہ اس کے بیٹے کو فوج میں کمیشن دیا جائے۔ اس طرح انڈین آرمی میں افسروں کی یہ نسل شامل ہو گئی، جسے عام زبان میں وار فنڈ لکٹین کہتے تھے۔ انہیں چند مہینوں کی ٹریننگ دے کر یونٹوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ بعض باپ مزید چندہ دے کر بیٹے کو کسی ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیتے تھے جہاں محاذ پر جانے کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ ظفر اسی نسل کا کیپٹن تھا۔ اس کا باپ دلی کے نواح کا رہنے والا جاگیردار تھا۔ اس نے سپلائی کور کے ہیڈ کوارٹر میں ظفر کی پوسٹنگ کروا لی۔ اس طرح ظفر اور کمل کی ملاقاتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ کمل کو وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ کمل اسے وعدے پر ٹالتی رہتی تھی۔ پھر کمل کی شادی ہو گئی۔ پڑھنے والے یقین شاید نہ کریں، لیکن یہ کمل کا اپنا بیان تھا کہ شادی کے بعد کمل نے اپنے خاوند کو صرف اس لیے اس کے ماں باپ سے الگ کر لیا تھا کہ ظفر کے ساتھ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہے۔ کمل کی نوکرانی نے مجھے سنایا تھا کہ فلیٹ میں آتے ہی کمل نے ظفر کو رات کو بلا لیا تھا۔ کمل کا خاوند 2-3 دنوں کے لیے چلا گیا تھا۔ کمل نے گلاب اور موتی کے ہار منگوائے تھے جو اس نے بیڈ روم میں سجائے تھے۔ اس نے ظفر کے ساتھ اس کمرے میں ہانی مون منایا تھا اور ظفر سے کہا تھا کہ میرے اصلی خاوند تم ہو۔ ظفر نے کمل سے ضد شروع کر دی کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ کمل نے اسے کہیں کہہ دیا کہ وہ مہندر کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہی ہے، لیکن جب تک یہ زندہ ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ کمل نے مجھے بتایا کہ اس نے ظفر سے کہا تھا کہ وہ بیوی جس کسی کی بھی بنا دی گئی وہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن دلی طور پر دوستی ظفر کے ساتھ رکھے گی۔ میرا خیال ہے کمل کی خوبصورتی اور اس کا زندہ دلانہ انداز ایسا طلسماتی تھا کہ ظفر کا اس کے پیچھے پاگل ہو جانا قدرتی امر تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ظفر بہت امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اور بیوقوف بھی تھا۔ مہندر قتل ہو گیا تو کمل کو ذرا سا بھی شبہ نہ تھا کہ قاتل ظفر ہے۔ قتل کے بعد ظفر اس سے 3-4 بار ملا اور اسے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کو اکساتا رہا، لیکن کمل اسے کہتی رہی کہ ابھی غائب ہو گئے تو ہم پر قتل کا الزام لگ جائے گا۔ آخری ملاقات میں ظفر اسے بتا بیٹھا کہ اسی نے اس کے خاوند کو قتل کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمل بگڑ گئی۔ اس نے ایک بار بھی ظفر سے نہیں کہا تھا کہ وہ مہندر کو قتل کر دے۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی، کمل نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ میرا غلام بنا ہوا تھا، میرے اشاروں پر ناچتا تھا، مگر ظفر نے مجھے بیوہ کر دیا۔ میں نے ظفر کو گھر سے نکال دیا۔ آپ کہیں گے کہ تمہارے سامنے بڑا اچھا راستہ تھا، مسلمان ہو جاتی اور ظفر کے ساتھ شادی کر لیتی، لیکن میرے دل کی آواز کچھ اور تھی۔ میں نے اس پر عمل کیا۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے کمل، میں نے کہا۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کیا ظفر کو سزائے موت یا عمر قید دلوا کر تمہیں خوشی ہوگی؟ نہیں، اس نے کہا، یہ میرے لیے اتنا ہی بڑا صدمہ ہے جتنا اپنے خاوند کی موت کا ہے۔ کیا تم کورٹ میں یہ بیان دو گی؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں نے کورٹ میں بیان نہ دینا ہوتا تو آپ کو یہ راز کیوں دیتی؟ اس نے جواب دیا، میں کورٹ میں یہی بیان دوں گی۔ اور وہ پاگل ہو گئی۔ اسی روز ہم ظفر کے ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچے اور کمانڈنٹ سے ملے۔ وہ انگریز کرنل تھا۔ اسے یہ واردات سنائی تو اس نے بھی کہا کہ عجیب لڑکی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑکی دماغی طور پر صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ کرنل نے کیپٹن ظفر کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ کیپٹن ظفر، میں نے اسے کہا، تمہارے لیے صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، اقبال جرم کر لو، ہمارے پاس شہادت مکمل ہے۔ پہلے تو اس نے پس و پیش کی، پھر جب ہم نے اس کے آگے شہادت رکھ دی اور یہ بھی بتایا
کہ ایک टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखा था और ये सिख उसे पहचानता है तो वो कुछ ढीला पड़ गया। हमने टैक्सी ड्राइवर को बुलाकर जफ़र का चेहरा दिखा दिया ताकि अदालत में वो कह सके कि उसने जफ़र को सरकारी मोटरसाइकिल पर आते देखा, मकतूल पर गोलियां चलाते भी देखा था। जफ़र चौंके अमीर बाप का बेटा था, इसलिए वो समझता था कि दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। उसकी कप्तानी भी खरीदा हुआ ओहदा था। उसके बाप ने कीमतवार फंड को अदा की थी। अब हमने उसके आगे कत्ल का इल्ज़ाम और शहादत रख दी तो अक्ल से अपनी वकालत करने की बजाय उसने रिश्वत पेश की। उसने कहा कि मैं ब्लैंक चेक दस्तखत करके दे दूंगा, जितनी मर्जी है रकम लिख लेना। हकीकत ये थी कि उसके खिलाफ शहादत कमज़ोर थी, लेकिन वो ना समझ सका कि रिश्वत पेश करने का मतलब होता है इकबाल जुर्म। हमने उसे हवालात में बंद कर दिया और शहादत इकट्ठी करने लगे। उसके हेड क्वार्टर से शहादत मिल गई कि वो वारदात की रात सरकारी फ़ौजी मोटरसाइकिल ले गया था। रजिस्टर पर उसके दस्तखत मौजूद थे। रजिस्टर में मोटरसाइकिल की वापसी का वक्त भी दर्ज था। 38 बोर का रिवाल्वर उसका अपना था, उसका लाइसेंस था। फौज में ज़ाती हथियार मसलन रिवाल्वर या शिकारी बंदूक अपने पास नहीं रखे जाते, ये आर्मरी में रखे जाते हैं और रिकॉर्ड पर होते हैं। मालिक अपना असला ले जाए तो रजिस्टर पर दस्तखत करके ले जाता है, वापसी पर यह फिर रजिस्टर पर लिखा जाता है। हमने रिकॉर्ड देखा तो वारदात वाले दिन जफ़र अपना रिवाल्वर ले गया था और अगले रोज़ रजिस्टर में वापसी लिखी हुई थी। रिकॉर्ड में पहले 24 गोलियां थीं, वापस 22 गोलियां की गईं। हमने मोटरसाइकिल, रिवाल्वर, गोलियां और रिकॉर्ड की कापियां कब्जे में ले लीं। हमारे पास 2 बड़े मजबूत और कीमती गवाह थे, एक थी कमल और दूसरी उसकी नौकरानी। गवाहों का हमें कोई गम नहीं था, उसका इंतज़ाम हम कर सकते थे। मैं और इंस्पेक्टर टेनिसन ने इन दोनों औरतों को गवाही के लिए तैयार कर लिया और हम मुकदमा तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। कैप्टन जफ़र एक आम मुलजिम की हैसियत से हमारी हवालात में बंद था। उसके बाप ने ऊपर तक रसाई हासिल कर ली थी, हम तक भी पहुंचा। उसके पास दौलत थी जो वो हर किसी को पेश करता फिरता था, लेकिन सिवाय धुतकार के उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। तकरीबन 1 महीने बाद मुकदमा अदालत में गया। इलाका थानेदार सब इंस्पेक्टर रतन कुमार की गवाही हुई, फिर मेरी और इंस्पेक्टर टेनिसन की गवाही हुई। उसके बाद इस केस की सबसे ज़्यादा अहम गवाह कमल को गवाही देने के लिए अदालत में आई। ये जहन में रखें कि अब केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सेशन कोर्ट में आ गया था, जहां इसका फैसला होना था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमल से गवाही दिलवाने लगा तो कमल ने कुछ और ही हरकतें और बातें शुरू कर दी। जज ने उसे वार्निंग दी कि वो सेशन कोर्ट में खड़ी है और कत्ल के केस की गवाह है, लेकिन कमल ने हंसना शुरू कर दिया। उसने जो हरकतें और बातें की वो बहुत ही लंबी हैं। मैं ज़रूरत नहीं समझता कि ये सब की सब लिखी जाए। मिसाल के तौर पर एक बात सुनाता हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसे कहा कि आपका खामंद कत्ल हो गया था। कमल ने जवाब दिया कि मेरे 2 खामंद थे, एक कत्ल हो गया है और दूसरा ये अपील दायर हुई। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतनी मेहरबानी की कि सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। तकरीबन 2.5 साल बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। जफ़र का ख़ानदान चूँकि अंग्रेज़ नवाज था, बल्कि मैं इन्हें हिंदू नवाज भी कहूँगा। इस ख़ानदान में से कोई एक भी फ़र्द पाकिस्तान नहीं आया था। कमल के मुतालिक केस ख़त्म होने के 1.5-2 महीने बाद ही पता चल गया था कि इसे आगरा के पागल खाने में भेज दिया गया था।